अब बच्चों इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज में हमारा अगला टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ फूड्स. एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट of animal livestock. It includes various aspects such as feeding, breeding, and disease control. Animal based farming includes cattle farming, goat, sheep, poultry, fish farming, etc. As the population increases and as living standards increase, the demand for milk, eggs, meat is also going up. Also, the growing awareness of the need for human treatment of livestock has brought in new limitations in livestock farming. Thus, livestock production also needs to be improved. Okay, first is cattle farming. Cattle husbandry is done for two purposes, for milk and draught labor. फॉर एग्रीकल्चर वर्क. ड्रॉट लेबर क्या होता है, जिसमें हम बैल गायों को यूज़ करते हैं ना एग्रीकल्चर वर्क के लिए, जैसे टिलिंग करते हैं, इरिगेशन करते हैं, कार्टिंग करते हैं. इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज़. बोस इंडिकस मीन्स काउज एंड बोस बल्बिलिस मीन्स बफेलोज. मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स या डेयरी एनिमल्स, while the ones used for farm labor are called draught animals. ठीक है. Milk production depends to some extent on the duration of the lactation period, meaning the period of milk production after giving birth to the calf. So milk production can be increased by increasing the lactation period. Exotic or foreign breeds, for example Jersey, brown Swiss cow, they are selected for long lactation periods, while local breeds जैसे रेड सिंधी, सहीवाल, ये गाय क्या है, लोकल ब्रीड्स हैं हमारी. दे शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज. द टू कैन बी क्रॉस ब्रेड टू गेट एनिमल्स विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज़. समझ गए. एग्जॉटिक ब्रीड में और जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं, इनके अंदर क्रॉस ब्रीड करा के आप ऐसे एनिमल्स प्रोड्यूस करा सकते हो जिनके अंदर दोनों डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हों. कौन कौन से, डिजीज रेजिस्टेंस भी हो और लैक्टेशन पीरियड भी उनका लंबा हो. अब कैसे की जाती है देखभाल कैटल्स की. प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज़ फॉर काउज एंड बफोलोज आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग, फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल. Animals require regular brushing to remove dirt and loose hair. They should be sheltered under well ventilated roofed sheds that protect them from rain, heat, and cold. The floor of the cattle shed needs to be sloping so as to stay dry and to facilitate cleaning. The food requirements of dairy animals are of two types: maintenance requirement, which is the food required to support the animal to live a healthy life, and milk producing requirement, which is the type of food required during the lactation period. Animal feed includes roughage. Roughage means fibers, which is largely fiber. मतलब ये सारा आपका रफेज आ जाता है. जितनी भी तरह की ग्रास है, फॉडर है, सूखा फॉडर, ग्रीन फॉडर, ये सब रफेज में आ जाएगा, है ना, जिससे उनको फाइबर मिलता है. स्ट्रॉ, हे, साइलेज, फॉरेज, पास्चर, ग्रासेस, ये सब रफेज कहलाते हैं. और कॉन्सनट्रेट्स में क्या हो जाता है, विच आर लो इन फाइबर, लेकिन वो बहुत हाई लेवल का प्रोटीन होता है उसके अंदर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जैसे आपका ये जो पीनट का ऑयल निकाल लेते हैं ना, उसके बाद जो बच जाता है मटेरियल, वो केक बना के उनको एनिमल्स को खिलाते हैं. इसी तरह से शुगर केन के मोलेसेस भी खिलाते हैं. ओट्स, बार्ले, कॉर्न, कॉटन सीड, सोरगम, सोयाबीन, कैनोला, पीनट, शुगर केन, इन सब में से जब ऑयल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है ना, दैट इज़ कॉन्सनट्रेट विच इज़ हाई इन प्रोटीन. Besides such nutritious food material, certain feed additives containing micronutrients promote the health and milk output of dairy animals, है ना. मिनरल्स भी, विटामिन्स, ये सब दिए जाते हैं उनको. Cattle suffer from a number of diseases. The diseases, beside causing death, reduce milk production. A healthy animal feeds regularly and has a normal posture. बच्चों ये भी
चैलेंजिंग टास्क होता है कैटल फार्मिंग भी, उनके अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है. दे नीड प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर ब्रीडिंग, प्रॉपर केयर फ्रॉम डिजीजेज. The parasites of cattle may be both external parasites and internal parasites. है ना, parasite जानते हो ना, दूसरे एनिमल्स का ब्लड सक करते हैं, ये बाहर भी रहते हैं उनकी बॉडी के, अंदर भी रहते हैं, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है उनको. द एक्सटर्नल पैरासाइट्स लिव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिजीज. द इंटरनल पैरासाइट लाइक वॉर्म्स, दे अफेक्ट, राउंड वॉर्म्स होते हैं ना, दे अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन. वाइल फ्लूक्स, लीवर फ्लूक होता है, ये भी पैरासाइट है, ये लीवर को डैमेज कर देता है उनके. इन्फेक्शियस डिसीजेज आर ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेज. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैक्सीनेशंस आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेज. पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब मुर्गी पालन. पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फोल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट. Therefore, improved poultry breeds are developed and farmed to produce layers for eggs and broilers for meat. दो तरह की फार्मिंग होती है पोल्ट्री फार्मिंग. एक में आप लेयर चिक्स को रेज करते हो जो कि अंडे देते हैं, और दूसरे होते हैं ब्रॉयलर्स जो कि मीट के लिए ग्रो किए जाते हैं, इनको रेज किया जाता है चिकन्स को. दोनों की अलग अलग होती है फार्मिंग. जो लेयर्स चिकन होते हैं ना, वो थोड़े छोटे होते हैं साइज़ में, उनको जो डाइट दी जाती है वो सिर्फ उसके अकॉर्डिंग दी जाती है जैसे वो ज़्यादा अंडे ले करें. और ब्रॉयलर्स जो होते हैं वो बिगर होते हैं साइज़ में, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, और उनकी डाइट जो है वो प्रोटीन रिच डाइट होती है ताकि उनका फटाफट मीट तैयार हो फॉर ईटिंग. द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन द इंडिजीनियस बोलते हैं, example asil, and foreign exotic, for example leghorn breeds for variety improvements are focused on the development of new varieties for the following desirable traits. दोनों की varieties में अलग अलग traits हैं, है ना. desirable traits क्या होते हैं, जो चाहते हो आप, जो characteristics. number and quality of chicks. Drop broiler parent for commercial chick production. summer adaptation capacity, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, ये सब डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हैं. लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स. ठीक है, एग लेइंग बर्ड को चाहते हो आप कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो डाइट है उसको चीपर डाइट को यूटिलाइज कर सके. ठीक है, क्योंकि उसको एग्स ले करने हैं सिर्फ. एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन. ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी. केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड कैराकस क्वालिटी. मोर्टेलिटी मीन्स इनकी अवॉइड मोर्टेलिटी मतलब मर ना जाए जल्दी से वो लोग, उसके लिए ध्यान दिया जाता है. और प्रॉपर उनके फेदर्स और कैराकस मतलब उनकी बॉडी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर एंड सेंट टू मार्केट फॉर मीट पर्पसेस. फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स फूड गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट. दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर. आपने देखा होगा ना पोल्ट्री फार्म्स में सारी लाइटिंग होती है, वो एग लेइंग के लिए उनको लाइट, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उनको लाइट चाहिए होती है. प्रॉपर कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं गुड प्रोडक्शन के लिए. एंड हाइजीनिक कंडीशन इन हाउसिंग, नहीं तो बीमारियां हो जाती हैं अगर हाइजीन अच्छा नहीं होगा ना. इंसेक्टिसाइड सब अच्छे से केयर करनी पड़ती है पोल्ट्री फार्मिंग में. एंड पोल्ट्री फीड एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेज एंड पेस्ट. द हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रॉयलर आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स. द राशन, daily food requirement for broiler is protein rich with adequate fat. The level of vitamin K and A is kept high in the poultry feeds. Poultry fowl suffer from a number of diseases caused by virus, bacteria, fungi, parasites as well as from nutritional deficiencies. आपने बर्ड फ्लू का नाम सुना है ना. These necessitate proper cleaning, sanitation, spraying of disinfectants at regular intervals. Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious disease and reduce loss of poultry during an outbreak of disease. ये देखो, ये लेगहॉर्न है और ये सील है.
क्रॉस ब्रीड करा के डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ के जो चिक्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं. नाउ द फिश प्रोडक्शन. फिश इज़ द चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड. Fish production includes the finned true fish as well as shellfish such as prawn and molluscas. मोलस्का जानते हैं ना आप, पाइला होता है इसके अंदर, पाइला. There are two types of obtained fish. One is from natural resources which is called capture fishing. ठीक है. द अदर, जैसे आप सी में देखते हो ना, जाते हैं मछुआरे, उसको कैप्चर फिशिंग बोलते हैं. द अदर वे इज़ बाय फिश फार्मिंग विच इज़ कॉल्ड कल्चर फिशरी. आप खुद का अपना फार्म बना के उसमें फ़िश को रेस करते हो तो उसको बोलते हैं कल्चर फिशरी. The water sources of fish can be either seawater or freshwater, such as in river and ponds. Fishing can thus be done both by capture and culture of fish in marine and freshwater ecosystem. Marine fisheries किसको कहते हैं? India's marine fishery resources include 7,500 kilometer of coastline and deep sea beyond it. Popular marine fish varieties include pomfret, mackerel, tuna, sardines, and Bombay duck. Marine fish are caught using many kinds of fishing nets from fishing boats. Yields are increased by locating large schools of fish in the open sea using satellite and eco sounders. तो इन सब की सहायता से, सैटेलाइट्स और इको साउंडर्स की सहायता से पता लगाया जाता है कहाँ पे स्कूल्स ऑफ फिशेज हैं, है ना. सम मेराइन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फार्म्ड इन सी वाटर. सी वाटर में भी फार्मिंग होती है. दिस इंक्लूड्स फिन्ड फिश लाइक मलेट्स, भेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स, शेल फिश सच एज प्रॉन्स, mussels and oysters as well as seaweed. Oysters are also cultivated for the pearls there that they make. ये देखो, मेराइन फिश और फ्रेश वाटर फिश, प्रॉन्स है ना अलग अलग तरह के. As marine fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only be met by such culture fisheries, a practice called mariculture. Okay, जब आप कल्चरिंग करते हो ना फिश की, फिशरीज की, तो उसको बोलते हैं मैरीकल्चर. इनलैंड फिशरीज. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वायर्स एंड रिवर्स. brackish water resources where sea water and fresh water mix together such as estuaries and lagoons are also important fish reservoirs. While capture fishing is also done in such inland water bodies, the yield is not high. So most fishes production from these resources is through aquaculture. ठीक है, आपको करना पड़ता है एक्वाकल्चर. फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन द कॉम्बिनेशन विद द राइस क्रॉप so that fish are grown in the water in the paddy field. More intensive fish farming can be done in the composite fish culture system. Both local and important fish varieties are used in such systems. ठीक है, कॉम्बिनेशन में करने पड़ता है फिश कल्चर राइस फील्ड में. In such a system, a combination of 5 or 6 fish species is used in a single fish pond. These fishes are selected so that they do not compete for food among themselves, having different types of food habits. ठीक है, combination क्यों रखा है? As a result, the food available in all the parts of the pond is used. As cutlas are surface feeders. Rohus feed in the middle zone of the pond. Mrigals and common carps are bottom feeder, and grass carps feed on the weeds. Together, these species can use all the food in the pond without competing with each other. This increases the fish yield from the pond. आगे अगर फिशरीज करनी है तो you have to keep different kinds of fishes so that they can utilize all type of food present. One problem with such composite fish culture is that many of these fish breed only during monsoon. Even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with that of other species as well. So a major problem is fish farming is the lack of availability of good quality seed. To overcome this problem, ways have now been worked out to breed these fishes in ponds using hormonal stimulation. This has ensured the supply of pure fish seed in desired quantities. क्या हो रहा है ना, आपको वाइल्ड में से कलेक्ट करने पड़ेंगे अगर फिश के सीड, अंडे, तो वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ मिक्सड होंगे. तो आपको क्या गुड क्वालिटी के सीड को लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको खुद ही हार्मोन स्टिमुलेशन दे के आपको खुद ही सीड्स ग्रो कराने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपको प्योर फिश के सीड्स मिलेंगे, प्योर क्वालिटी के। अब है बी कीपिंग। हनी इज वाइडली यूज्ड एंड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज बिकम एन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज। Since beekeeping needs low investment, farmers use it as an additional income generating activity. In addition to honey, the beehives are a source of wax which is used in various medicinal preparations. ये एग्रीकल्चर के साथ साथ जो किसान है वो बी कीपिंग भी करता है, ताकि खेतों में क्या होगा, बीज का पॉलिनेशन, बीज पॉलिनेशन करेंगी और साथ में वो क्या करेंगी, सक करेंगी, तो उससे हनी बनाएंगी। The local varieties of bees used for commercial honey production are Apis cerana indica, commonly known as Indian bee; A. dorsata, the rock bee; and A. flori, the little bee. An Italian bee variety, A. mellifera, A for Apis, has also been brought in to increase yield of honey. This is the variety commonly used for commercial honey production. The Italian bees have high honey collection capacity. They sting somewhat less. They stay in a given beehive for long periods. They breed very well. For commercial honey production, bee farms or apiaries are established. The value or quality of honey depends upon the pasturage or the flowers available to the bees for nectar and pollen collection. In addition to adequate quantity of pasturage, the kind of flowers available will determine the taste of the honey. अलग अलग फ्लावर्स के साथ आपको अलग अलग तरह का हनी मिलता है, क्योंकि उनका नेक्टर अलग अलग होता है ना।